आप सभी का स्वागत है आज के टैली बेसिक के इस तीसरी क्लास में। और आज हम इनकम एक्सपेंडिचर पे क्लास हमारी होगी। और इस क्लास को लेने के लिए जैसा कि विकी गौतम जी ले रहे थे वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज भी। और आज में थोड़ा चेंज है, आज इसके लीडिंग पर्सन होंगे मिस्टर प्रदीप कुमार मल्होत्रा सर। सो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के रिसोर्स पर्सन को इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आज के लीडिंग पर्सन के अ, संजू सर। Thank you, Abhishek and Saksham Rozgar Society to give opportunity to introduce today's resource person, Mr. Vicky Gautam. Mr. Vicky Gautam is a BCom honors graduate from Motilal Nehru College, University of Delhi. He completed his internship at VGHSR and Associate LLP, a chartered accountancy firm, and later continued work there as an auditor, where he gained practical exposure in auditing various companies. He has also worked with Samsung, handling MIS, financial reporting, and overall accounting functions. Further, he worked as a senior accountant in an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Kesel India, a Germany based organization, and is also pursuing LLB to gain expertise in taxation and corporate law. Apart from his professional career, he has been actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharti, Magic Bus, and Saksham Rozgar Society. He has been mentored and guided by Ms. Jyotika Kalra, President of Saksham Rozgar Society, who has been a constant support and source of support and motivation since his school days. Now, I also would like to introduce today's leading person, and it's an honor to introduce Mr. Pradeep Kumar Malhotra, sir. He holds a BTech in Mechanical Engineering from IIT Delhi and an MBA, and began his career as a scientist at Defense Research and Development Organization DRDO, contributing to missile development. With over 32 years of experience in government and PSU sectors, he has worked across project management, production, and multiple engineering and administrative domains. For the past 10 years, he has been actively associated with the Saksham Rozgar and Saksham Bharti as secretary and mentor, conducted session on personality development, career counseling, yoga, and pranayama. We're truly privileged to have him with us. Thank you. Over to you, Vicky. Thank you so much, Sanju Saini ji, and thank you so much, Mr. Abhishek, and thank you so much, Saksham Rozgar Society, and special thanks to our Saksham Rozgar Society President, Jyotika Kalra ma'am, and thank you so much, our today's lead person, PK Malhotra sir. तो आप सभी जैसा जानते हैं कि हमारी बिजनेस एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग की क्लास चल रही है, जिसके अंदर हम अभी जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें आपकी फोर्थ क्लास है आज। और फोर्थ क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैली इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद असाइनमेंट। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद असाइनमेंट के साथ होने वाला है। असाइनमेंट, इस असाइनमेंट में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम जो भी एंट्री सीखेंगे एक्सपेंस की और इनकम की, उस सारी एंट्रीज को हम क्या करेंगे, टैली के अंदर फीड करेंगे। ठीक है ना, कि टैली में कैसे फीड करेंगे, और उसके बाद जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंस के बाद हमारा क्या आता है, एक प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट या लॉस आता है। तो प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या टैली के अंदर मैच होता है कि नहीं मैच होता, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है ना। अब सबसे पहले आते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले मैंने आपको इसके बारे में वैसे बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आज एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो पीएनएल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शॉर्टकट में पीएनएल भी कहते हैं। तो पीएनएल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब फाइनेंशियल जो हमारी फिगर्स होती हैं उनका एक स्टेटमेंट है दैट शोज द कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस। वो हमारे कंपनी की इनकम को शो करता है और एक्सपेंस को शो करता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि वो किस पीरियड के लिए पीएनएल अकाउंट बन रहा है। यूजुअली 1 ईयर के लिए जो हमारा पीएनएल होता है वो यूजुअली 1 ईयर के लिए ही होता है, क्योंकि ये पीरियड वाइज पीरियड पीएनएल तैयार होता है। ठीक है ना। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है, अभी बैलेंस शीट आप सीखोगे, जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन डेट होती है,
मतलब वो पुराने टाइम चली आ रही है हमारे पास। 10 सालों में 15 सालों में जब हमारी कंपनी बनी थी, उस टाइम से अब तक हमारे पास क्या रखा हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है, वो आता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। बाकी पीनल में क्या आता है कि इस पिछले साल में क्या हुआ है हमारे साथ, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है ना। तो जो पीनल होता है वो शॉर्ट, बेसिकली 1 ईयर के लिए होता है। और बैलेंस शीट जो होती है वो पुराने साल, जब से कंपनी तैयार हुई है तब से का आज तक का जो स्टेटस बताती है, वो होती है हमारी बैलेंस शीट। इट हेल्प अस नो वेदर द बिजनेस हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस। और ये हमारी हेल्प करता है कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है। तो इसको हमें डिटरमाइन कैसे करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम की पॉइंट्स के बारे में। की पॉइंट्स में हम सबसे पहले समझेंगे इनकम के बारे में। अभी बस आपको थ्योरेटिकल करा रहे हैं, थ्योरेटिकल के बाद अभी ये सेम चीजें सारी हम टैली में भी करने वाले हैं, प्रैक्टिकली बिल्कुल टैली में करेंगे। और फिर आप जब टैली में करेंगे तब आपको सारी चीजें लिंक होगी, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सारा कुछ, वो सारा कुछ आपको लिंक हो जाएगा, किस तरीके से लेजर पोस्टिंग करनी है, वो सब आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। बाकी जो बैलेंस शीट वाला पार्ट होगा वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज इनकम। इनकम इज द मनी अर्न बाय अर्न बाय ए बिजनेस फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जैसे आप शुरुआत से सुनते आ रहे हो कि जो हमारा पूरा ये जो हमारी सीरीज है, अकाउंट्स वाली जो टैली वाली जो सीरीज है, वो पूरी मन्नत फर्नीचर के ऊपर ही काम कर रही है। ठीक है। तो हमने मन्नत फर्नीचर में पहले भी पढ़ा था कि वो अगर कोई गुड्स बेचता है, उससे भी इनकम होती है, तो भी उसकी इनकम है क्योंकि वो सेल कर रहा है। और वो सर्विस भी करता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करता है, किसी के घर पे जाके या होम डिलीवरी, होम सर्विस देनी है, किसी का मैन्यू कस्टमाइज कुछ प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। कस्टमाइज सोफा बनाना है या कस्टमाइज कोई फर्नीचर बनाना है, कस्टमाइज चेयर बनानी है, उसकी सर्विस जाके देता है, तो वो उसकी सर्विस इनकम हो जाएगी। ठीक है। ये दोनों ही काम उस बिजनेस के लिए मेन इनकम होगी। ठीक है ना। मेन इनकम मतलब उसकी सेल हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंडिचर या फिर और एक्सपेंसेस। ठीक है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस इज द मनी स्पेंट ऑन रनिंग द बिजनेस। जो बिजनेस को रन करने के लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं वो है। ठीक है। सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कॉस्ट, सर्विस, रेंट, सैलरीज एटसेट्रा, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार आपको इनकम एक्सपेंस क्यों पढ़ा रहा हूँ, बार बार मैं हर लेक्चर में इसलिए आपको रिवाइंड कराता हूँ कि आपको ये चीजें बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ होकर बैठ जाएं। जब एक्सपेंस और इनकम पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, तो जब आप अकाउंटिंग करोगे टैली के अंदर तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको इनकम और एक्सपेंस का बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ मेनी टाइम्स, कि वो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। इनकम बोलते आप समझ जाओगे कि इनकम किस तरीके से होगी। इनकम होगी सेल ऑफ गुड्स करके या सेल ऑफ सर्विस देके। ठीक है। एक्सपेंस क्या होंगे, एक्सपेंस ढेर सारे होंगे, सैलरीज, रेंट। ठीक है। और भी बहुत सारे जो हमारे एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है। जितना आपने इनकम अर्न किया, जितना आपने इनकम अर्न किया मतलब सेल से आपने जो प्रॉफिट कमाया, जो सेल से आपने इनकम जनरेट करी, मान लो एग्जांपल के लिए 50,000 रुपए की आपने सेल कर दी। ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है इनकम में से अगर टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस, जो इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है, वही क्या कहलाता है, आपका नेट प्रॉफिट। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो गई, ठीक है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, देखो आगे लिखा भी हुआ है, व्हेन इनकम इज हाई, व्हेन इनकम इज हायर, और और नेट लॉस। क्या बोल रहा है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो टोटल इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होगा आपका, तो वो क्या होगा आपका, नेट प्रॉफिट होगा। तब वो किस केस में होगा, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी, मतलब आपने ज्यादा सेल कर दी और खर्चे आपने कम किए, तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर आपने सेल 50,000 की करी लेकिन खर्चा आपका सिर्फ मात्र 30,000 हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 आपका मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। वही अगर आप मान लो इनकम आपकी कम हुई, इनकम मान लो 50,000 हुई लेकिन आपके एक्सपेंस मान लो 70,000 हो गए, 70,000 हो गए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस में इनकम कितनी अर्न करते हो और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस कितना इनकट करते हो। ठीक है। तो जो भी आप इनकम अर्न करोगे उसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंस स्पेंड करोगे, उसी का जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट और लॉस बना देता है। ठीक है ना। देखो इसमें आगे लिखा भी हुआ है, जब नेट प्रॉफिट कब होता है, व्हेन इनकम इज हायर, और नेट लॉस कब होता है, जब व्हेन एक्सपेंस आ रहा है। जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं तो आपको लॉस हो जाता है, और जब आपकी इनकम हाई होती है तो आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन वाला दोबारा समझ। हैं?
ये द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस, ये दोबारा बताना। देखो गुलशन, क्या होता है कि इनकम जब भी आपके पास दो तरीके से चीजें होंगी। एक होगी आपकी इनकम, जो आप इनकम अर्न कर रहे हो, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स करके कर रहे हो, चाहे वो सेल ऑफ सर्विस करके कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मानो, एग्जाम्पल ले लो आप, आपका मन्नत फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस में क्या हुआ, आपके पास एक 20,000 रुपए की आपने चेयर परचेज करी। मैं कल वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है गुलशन। तो 20,000 रुपए की चेयर आपने परचेज करी, और 20,000 रुपए की चेयर आपने वहां से खरीद के रख ली अपने पास। अब आपके पास एक कस्टमर आया, उन्होंने बोला मुझे चेयर चाहिए, और आपने क्या किया, उस चेयर को बेचने के लिए आपने एक एम्प्लॉय भी हायर कर रखा था, जिसको आप सैलरी दे रहे थे 10,000 रुपए की, ठीक है। अब अब आपने क्या करा, वो 20,000 रुपए की चेयर को, उस जो जो आपसे लेने आया चेयर, उसको आपने 50,000 में बेच दिया, ठीक है। तो एक्सपेंस आपका यहाँ पे कितना हुआ, 20,000 एक्सपेंस तो तब हुआ जो आपने चेयर को परचेज किया था, 20,000 उसमें लग गया आपका, 10,000 आपके किस में लग गए, सैलरी में लग गए। तो अभी के लिए टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 30,000 रुपये हो गया। लेकिन 30,000 के अगेंस्ट में आपने सेल कितना कर दिया प्रोडक्ट को, 50,000 में। तो जो 50,000 में आपने बेचा, तो 30,000 में आपका खर्चा हुआ था, तो आपका बेनिफिट प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि 50,000 रुपये की सेल करी और 30,000 रुपये का खर्चा हुआ, मात्र एक्सपेंस हुआ, तो 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। ये होगा प्रॉफिट वाला केस। अब दूसरा केस होता, सेम हुई, 20,000 रुपये की चेयर लाई और 50,000 में बेच दी। लेकिन उसमें क्या हुआ, आपने एक बंदा हायर किया सैलरी के लिए, उसकी सैलरी मान लो 40,000 रुपये थी, ठीक है। तो आपका खर्चा हुआ बिजनेस का। तो 20,000 रुपये की चेयर, 40,000 रुपये का आपको मान लो सैलरी देनी पड़ी इंप्लॉइज को। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 60,000 हो गया। और आपने चेयर कितने की बेची, 50,000 रुपये की। तो एक्सपेंस क्या हुआ, एक्सपेंस हायर हो गया ना। जब एक्सपेंस हायर हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, हमें 10,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपये की चेयर बेचने पे हमने जो एक्सपेंस किया वो 60,000 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सपेंस के अगेंस्ट में इनकम कितनी है, और इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंस कितना है। और यही डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। आई होप ओ, गुलशन क्लियर हो गया होगा, है ना। यस सर, इट नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं फॉर्मूला ऑफ पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वैसा भी मैंने आपको बता दिया पूरा डेप्थ में इजी तरीके से, कि फॉर्मूला ऑफ पीएनएल क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस में टोटल एक्सपेंस। ठीक है ना, जो नेट प्रॉफिट होता है वो टोटल इनकम में से माइनस करने में टोटल एक्सपेंस में हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आएगा तो लॉस है, सिंपल, ठीक है। और नीचे हमने स्टेटमेंट दे रखी है, इफ टोटल इनकम इज हायर देन टोटल एक्सपेंसेस वी गेट प्रॉफिट। जो भी हमने सीखा, इफ टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन टोटल इनकम वी गेट लॉसेस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। अब आप सभी को, मेरे मेरे हिसाब से आप सभी को पीएनएल तो समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है ना। अब आते हैं हम इनकम के ऊपर। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने सीख लिया, अब आते हैं हम इनकम के ऊपर। अब इनकम में क्या है, जो हम मन्नत फर्नीचर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो हमारी पुरानी स्टोरी चल रही थी मन्नत फर्नीचर की, जिसमें हमारे अमन जो हमारे प्रोपराइटर थे, उन्हीं की कहानी चल रही है। तो इनकम में आ रहा मन्नत फर्नीचर की क्या क्या इनकम है 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है। फर्स्ट देखो, अब इनकम मींस द टोटल अर्निंग ऑफ द बिजनेस। अब इनकम में, इनकम का मतलब क्या हुआ, पूरे बिजनेस की टोटल इनकम, जहां जहां से बिजनेस के पास पैसे आ सकते हैं, मन्नत फर्नीचर के पास जहां जहां से पैसे आ सकते हैं वो इसके लिए इनकम हो गई, ठीक है। अब आता है सेल्स की इनकम। अब सेल्स की इनकम तो आप सबको वैसे ही क्लियर हो गया होगा। सेल की इनकम मतलब कौन सी इनकम, जिसका उसका मेन बिजनेस है फर्नीचर को सेल करना, ठीक है, फर्नीचर को सेल करना, या फिर अपने गुड्स को मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देना। जैसे कि फर्नीचर में होता है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं वो लोग, तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं वो भी उनकी एक तरीके से क्या है, उनका सेल हो गया, क्योंकि उनका मेन बिजनेस है। गुड्स भी डिलीवर करते हैं, गुड्स भी बेचते हैं, और यहाँ पे सर्विस भी देते हैं, ठीक है, तो वो उनका सेल इनकम हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सेल इनकम इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। हमने 50,000 रुपए की सेल कर दी, अर्न फ्रॉम द सेलिंग फर्नीचर, हमने फर्नीचर सेल करके 50,000 रुपए इनकम अर्न कर ली। और रिसीव्ड इन बैंक, वो 50,000 हमने बैंक में रिसीव भी कर ली है, ठीक है। तो पहली सिंपल एंट्री ये हो गई। दूसरी आती है आपकी इनकम में एफडी इंटरेस्ट। मन्नत फर्नीचर ने क्या कर रखा है, एक एफडी ओपन कर रखी है अपने अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि उसको सेविंग का तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि उसके पास करंट अकाउंट है, ठीक है। तो उसने क्या करा, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए उसने एफडी करा दी, और उस एफडी पे उसको इंटरेस्ट मिल गया 500 रुपए का।
जो उसको बैंक में रिसीव हो गया, ठीक है, ये दूसरी इनकम हो गई उसकी। अब कौन बताएगा एफडी इंटरेस्ट डायरेक्ट इनकम है या फिर इनडायरेक्ट इनकम है? सर इनडायरेक्ट है सर। इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनडायरेक्ट इनकम है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे बिजनेस का पार्ट तो है नहीं, ये तो हम इनडायरेक्टली अर्न कर रहे हैं पैसा बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट आता है रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम 15,000 पे हमारे पास रेंटल इनकम भी आ गई, अर्न फ्रॉम रेंटिंग प्रॉपर्टी। मन्नत फर्नीचर के बाद ज्यादा पैसे आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली। और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया उसे, रेंट पे कर दिया, ठीक है। जब रेंट पे उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया, तो उस पे हर महीने उनको क्या मिलने लगा, रेंटल इनकम मिलने लगी। हर महीने एक रेंटल इनकम मिलने लगी। पहले वो खुद पे कर रहा था 20,000 पे रेंट, अब क्या वो 20,000 15,000 पे रेंट रिसीव भी कर रहा है किसी से, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, तो उसकी रेंटल इनकम हो गई। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या आ रहा है, 2,000 रुपीज अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कई तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गई, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट से पैसे रिटर्न हो रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई बिजनेस की। ये भी क्या है, आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद सर्विस इनकम। सर्विस इनकम स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। 3,000 रुपीज अर्न फ्रॉम डिलीवरी सर्विसेज। इसमें क्या है कि हमने कोई डिलीवरी कर दी सर्विसेज में। एग्जाम्पल के लिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट था, हमें प्रोडक्ट को बेचना था, और जो वहां से प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिलीवरी करने की, वो डिलीवरी सप्लायर की नहीं थी, मतलब मन्नत फर्नीचर की नहीं थी, वो कस्टमर खुद का था, मतलब कस्टमर को खुद वहां से प्रोडक्ट लेके जाना था। जैसे आप सभी ने देखा होगा, हम मान लो कभी भी मॉल में जाते हैं या फिर कहीं पे कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां से मान लो हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, या फिर आप देखोगे आप एलईडी परचेज करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे वो डिलीवरी फ्री होती है। लेकिन कई केसों में क्या होता है, डिलीवरी फ्री नहीं होती है, डिलीवरी चार्ज लग जाता है। तो जो डिलीवरी प्रोडक्ट का करते हैं ना, कई बार ये लोग फर्नीचर की डिलीवरी करते हैं, उसका वो चार्ज क्लेम कर लेते हैं पार्टी से, तो वो डिलीवरी चार्ज भी इनका क्या बन जाता है, इनकम बन जाती है। जो ये फर्नीचर का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को पहुंचाने का काम करते हैं, वो उसके डिलीवरी चार्ज भी कस्टमर से क्लेम कर लेते हैं, और वो भी इनका डायरेक्ट इनकम बन जाता है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर से रिलेटेड ही काम है, फर्नीचर को पहुंचाने वाला काम, ठीक है, तो ये भी उनकी डायरेक्ट इनकम बन जाती है, ठीक है। तो टोटल इनकम आपकी आ रही, टोटल इनकम कितनी आ गई आपकी, 70,500 रुपीज। ये होगी आपकी टोटल इनकम मन्नत फर्नीचर के अंदर, ठीक है। अभी सारी जो आपकी फिगर्स, जो सारी आपको फिगर्स दिख रही हैं, तो सारी आपको एंट्रीज दिख रही हैं, अभी हम इस सारी एंट्रीज को टैली में फीड करेंगे। और टैली में फीड करने के बाद जो हमारी इनकम है वो 70,500, 70,500 होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि हमारी टैली सही से मेंटेन हो रही है, ठीक है ना। तो अभी सबको इनको प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ठीक है, तो अब अच्छा लगेगा, मजा आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंडिचर के अंदर। अब एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस भी आपके कई तरीके के होते हैं। देखो, बिजनेस चला रहे हो तो आपको एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सपेंडिचर मीन्स द टोटल मनी स्पेंड टू रन द बिजनेस। तो एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मीन्स द टोटल मनी, जो टोटल मनी आपने स्पेंड करी है एक बिजनेस को रन करने के लिए, वो सारे क्या हुए, आपके बिजनेस के खर्चे हुए, आपके सारे बिजनेस के वो एक्सपेंस हो गए। और एक्सपेंस में किस तरीके के एक्सपेंस आते हैं, सबसे पहले परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल, जो फर्नीचर को रीसेल करने के एक्सपेंस। एग्जाम्पल, जो कॉस्ट, जिस जिस प्रोडक्ट पे हम, जिस प्राइस पे हमने परचेज किया था, जो 50,000 में सेल नहीं की थी अभी हमने, जो इनकम जनरेट करी थी सेल ऑफ फर्नीचर, उसको हमने 20,000 में परचेज भी किया था, ठीक है। वही पुराना वाला एग्जाम्पल है, 20,000 में परचेज करके 50,000 में हम बेच रहे हैं चेयर को, वही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारी जो परचेज करने पर जो एक्सपेंस लगा, वो भी हमारा एक्सपेंस है। बाकी नेक्स्ट आता है आपका रेंट। अब देखो, यहाँ पर दो तरीके के रेंट आपने देख लिए, एक वो रेंट अर्न भी कर रहा है इनकम में, और एक जगह वो अपना रेंट दे भी रहा है, मन्नत फर्नीचर, ठीक है। तो जो शॉप उसके पास पड़ी हुई थी, अपनी खुद की शॉप थी, वो उसने रेंट पे लगा दी, जहाँ पे वो 15,000 रुपये पर मंथ अर्न कर रहा है। और जो उसने पुरानी अपनी शॉप पे काम कर रहा था, वो भी उसके पास रेंट पे ही है, तो 10,000 रुपये रेंट उसका वो दे भी रहा है एज ए एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखो, रेंट देने वाला है, ये आपका एक्सपेंस वाला रेंट है, 10,000 रुपये। नेक्स्ट आपका आता है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस क्या है, इसके पास इंप्लॉइज है, अकाउंटेंट है, ठीक है। अब सैलरी वेजेस दे रहा है 25,000 रुपये के, 25,000 रुपीज के, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी। यूटिलिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि देखो, बिजली की कंजम्पशन होगी, जब प्रोडक्शन होगा, या फिर एम्प्लॉयज बैठेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रेडिंग होगी, ऑफिस स्टाफ होगा, एडमिन होगा, जब सब चीजें चलेंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन का एक्सपेंस आएगा।
तो आपका क्या है, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 2000 रुपीज का। लोन इंटरेस्ट, अब देखो आपने किसी से लोन लिया बिजनेस को चलाने के लिए, या फिर सेल्फ ओन आपने अपने खुद के पैसे लगाए, जो भी आपने किया, तो उस पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना। जो बिजनेस चलाने के लिए आपने लोन ले रखा है उस पर आपको ब्याज तो भरना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और लास्ट आपका पॉइंट है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। जो आपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, पम्फलेट छपवा रहे हो, ठीक है, प्रमोशन कर रहे हो, कार्ड्स बनवा रहे हो अपने, ठीक है, ये सारे क्या है, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के खर्चे हैं। एडवर्टाइज करने के एक्सपेंस है वो आपके हो जाएंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जो कि आपके 5000 रुपीज के हैं, ठीक है। तो टोटल आपके जो टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 64,000 हो गए, ठीक है जी। जहाँ तक किसी को कोई डाउट। सर ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हेलो। 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 हाँ हाँ जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नहीं नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, परचेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है और रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक तो है ये यही जो कर। सेग्रीगेशन है ना, ये जी सर। सेग्रीगेशन में आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब हम टैली में एंट्री करेंगे ना, हम्म। तो सेग्रीगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका, क्योंकि वहां पे ना ग्रुपिंग करनी पड़ती है। अभी टैली में जब मैं लेजर क्रिएट करूंगा ना, तो जी। वहां पे आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और ग्रुपिंग में वो सबसे पहले यही पूछता है, डायरेक्ट इनकम है या फिर इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम। एक्सपेंस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अभी हम हम्म। बस इसके बाद जब ये कवर अप हो जाएगा फिर हम टैली पे चलेंगे। हम रियल में भी लेजर क्रिएट करेंगे, और लेजर क्रिएट करने के बाद एंट्री पास करेंगे, ठीक है। वहां पर ये चीजें मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हम वहाँ फीड करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आगे हमारा नेक्स्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। इसमें बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन था, और बहुत ही सिंपल इनकम भी थी, बहुत ही सिंपल हमारी एक्सपेंस भी थी। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस। तो 70,500 रुपये की हमारी इनकम हुई थी, ठीक है। 70,500 की हमारी इनकम हुई थी, एक्सपेंस हमारा 64,000 का हो गया था। 64,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया, और दोनों को जब हमने लेस कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। 6,500 हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। और ये 6,500 का प्रॉफिट हमारा टैली में मैच होना चाहिए। अगर 6,500 हमारा टैली में मैच हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आज का इनकम और एक्सपेंस की एंट्री हम पीएनएल में एंट्री करना सीख जाएंगे। तो अब चलते हैं टैली के अंदर, ठीक है, हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने अब। हमने अब थ्योरेटिकल पढ़ लिया। अब इसी जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा है, जो भी हमने ये कि इनकम के बारे में पढ़ा, एक्सपेंस के बारे में पढ़ा, अब अब हम क्या करेंगे, इन इनकम और एक्सपेंस को लाइव एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रियल में अच्छे से वर्क करता है या नहीं, ठीक है। और उसके अंदर भी ये 6,500 का नेट प्रॉफिट आना चाहिए। तो लेट्स गो। सबसे पहले आपको टैली ओपन करनी है। हाँ, मैंने भी आप लोगों के ना वो प्राइस वाले वो चेक कर रहा था मैं, कि किसको कितने कितने मतलब क्या क्या प्राइस वाला सिस्टम चल रहा था आपका, मैं चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि पाथ किसी ने चेंज नहीं कर रखा था। सबने मतलब टैली के डिफॉल्ट लोकेशन पे ही वो बना दिया था, डाटा बना दिया था। ऐसा क्यों, किसी ने पाथ क्यों नहीं चेंज किया था। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था डाटा, लेकिन डेस्कटॉप पे डाटा किसी का भी सेव नहीं था, सिर्फ एक का था। मेरे को याद आ रहा है सिर्फ एक स्टूडेंट का डेस्कटॉप पे डाटा सेव हुआ था, बाकी सबका टैली के डिफॉल्ट लोकेशन में ही डाटा सेव हो रहा था। बट स्टिल चलो कोई नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास हमें देखना है डाटा हमारे पास कहाँ पे है सारी क्लासेस में। तो मैंने डाटा ना बाहर की तरफ ही रख दिया है, मन्नत फर्नीचर डाटा, ठीक है। सीधा आपको एंटर करना है, डाटा आपको दिख रहा है, आपको पाथ को कॉपी करना है, ठीक है। या तो आप कर्सर लेके जा सकते हो यहाँ पे और क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। दूसरा आप शॉर्टकट की ऑल्ट डी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम माउस यूज करते हुए इसको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपको ओपन करना है तो सिंपल जो सामने आपको एक बार दिख रहा है वहाँ पे आपको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट के बाद फिर आपको एंटर करोगे, फिर आपकी कंपनी ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगी। विजिबल होने के बाद फिर आपको एक बार एंटर प्रेस करना है। नाउ आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है, ठीक है जी।
बाकी हमने बेसिक तो हमने वो पहले ही पढ़ लिया था, मास्टर्स के बारे में, ट्रांजेक्शन्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इवन हमने कुछ लेजर भी क्रिएट कर लिए थे। तो आज हम चलते हैं, आज वाले में हमें क्या कौन कौन से लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो हम आ गए इनकम के अंदर। इनकम से पहले ना हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले बिजनेस में कुछ पैसे डालते हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा बिजनेस में पैसे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या होती है। और उससे बैंक पहले अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जिज्ञासा जी, बार जरा एक्सप्लेन कर दोगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट, जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो भी हम पैसा लगाते हैं तो वो हमारी एक तरह से कैपिटल होती है। तो जब हम इसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारे इससे क्या हो रहा है, हमने बैंक बढ़ा दिया, मतलब हमने जो कैपिटल लगाई है तो वो हमारी उसमें बढ़ जाएगी। अ, मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस में हमारे मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर दी तो वो बढ़ जाती है। तो इसलिए उसे हम क्रेडिट करते हैं। हाँ जिज्ञासा, और ऑलमोस्ट आप बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप कि कैपिटल, एक कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो इम्प्लॉयर, जो आपका जो कंपनी का जो ओनर होता है ना, वो पैसे जो लगाता है ना। देखो मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि आपका जो बिजनेस है और जो आपके बिजनेस का ओनर है, आप बिल्कुल एग्जांपल लेके चलो, जो मन्नत फर्नीचर है और जो मन्नत फर्नीचर का ओनर कौन है, ओनर क्या नाम था ओनर का। अमन। अमन, यस अमन। तो जो अमन है, जो अमन है और मन्नत फर्नीचर है, देखो मन्नत फर्नीचर को ओपन तो अमन ने ही किया है, ठीक है, लेकिन अमन और मन्नत फर्नीचर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस अलग होता है और उसका ओनर हमेशा अलग होता है। अब तो क्या हुआ, तो मन्नत फर्नीचर एक अलग इंसान हो गया, और आप मतलब मन्नत फर्नीचर एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, तो मन्नत फर्नीचर एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। और जो हमारा मिस्टर अमन है वो एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो दोनों ही पर्सन है, अलग अलग पर्सन है। और मन्नत फर्नीचर में जब अमन, जो मैंने बताया था कि अमन को अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, उसको कैपिटल के लिए सोर्स की इनकम कहाँ कहाँ से मिलेगी, जल्दी बता दो फटाफट, कहाँ कहाँ से इनकम मिलेगी कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए। बैंक लोन, फैमिली बैंक या लोन, फ्रेंड से ले सकते हैं। एफडी, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ठीक है। सेल्फ की इन्वेस्टमेंट, अपने खुद के पैसे लगाकर भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारा मिस्टर अमन है उसने अपने खुद के पैसे लगाए थे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। तो उसने 5 लाख रुपए अपने खुद से लगाए थे। अब जब अमन मन्नत फर्नीचर में पैसे लगाएगा, तो मन्नत फर्नीचर में पैसे ऑटोमेटिक इनफ्लो हो जाएंगे। और मन्नत फर्नीचर में जब कैश इनफ्लो हो जाएगा, बैंक मतलब सॉरी, बैंक में जब पैसे आ जाएंगे मन्नत फर्नीचर के, तो मन्नत फर्नीचर का बैंक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे बैंक में 5 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएंगे, और वही हमारे मन्नत फर्नीचर में 5 लाख की लाइबिलिटी बन जाएगी, जो हमें फ्यूचर में अमन को देनी है, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहली हम एंट्री हमें यही करनी है। और एंट्री हमेशा कहाँ से होती है टैली में, वाउचर से। आप सभी देख सकते हो, जहाँ पे ये कोई येलो कलर का सिंबल दिख रहा है, ये वाउच येलो कलर की लाइन दिख रही होगी आपको। तो देखो ये वाउचर है। अब आपको शॉर्टकट यूज करना है, तो देखो सामने वो वी डार्क हो रखा है, तो वी प्रेस कर दोगे तो वाउचर ओपन हो जाएगा, या फिर आप एंटर भी कर सकते हो। सिंपल हम वाउचर में जाएंगे एंट्री प्रेस करने के लिए। अब मैंने एंट्री कर दी। अब एंट्री करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने एक पेमेंट वाउचर खुल गया। अब पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर का मतलब होता है जब हम यूज करते हैं, जब हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके आगे देखो, आप राइट साइड में देख सकते हो आप सभी, अगर आप फोन में चला रहे हो ना तो फोन में जूम कर सकते हो आप। जूम करके आप राइट साइड में आ जाओ। फोन में ना डिस्प्ले जूम हो जाएगी आपकी, फोन में जूम करो आप और राइट साइड में आ जाओ। सर डायरेक्ट वी प्रेस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल वी प्रेस कर सकते हो आप, जो डार्क हो रखे हैं ना अल्फाबेट, वो आप प्रेस करके डायरेक्ट पहुंच सकते हो उस पर, ठीक है। आप राइट साइड में आओगे, आपको सारे वाउचर्स की लिस्ट दिख जाएगी। सबसे पहले आपके पास जो ओपन हो रहा है वो पेमेंट वाउचर है। और पेमेंट वाउचर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को पेमेंट करते हो,
तो आप पेमेंट वाउचर यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा वाउचर। किसी को पता है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर किस लिए यूज किया जाता है? सर कॉन्ट्रा वाउचर वो होता है जिसमें हम बैंक और कैश से रिलेटेड एंट्री करते हैं। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सारे खाने बिल्कुल सही सिर्फ बताया। बैंक कॉन्ट्रा और कैश की होती है बस हाँ एंट्री। हाँ, कॉन्ट्रा वाउचर हम तब यूज करते हैं जब कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन होती है। सिर्फ कैश जी। और बैंक की ट्रांजेक्शन के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। या तो हम यस। कैश डिपॉजिट करा रहे होंगे बैंक में, या हम बैंक से कैश को विड्रॉ कर रहे होंगे। इन विड्रॉ कर दोनों रहे ही हो। केसों में कॉन्ट्रा वाउचर यूज होता है। ठीक है यस ना? सर। तो कॉन्ट्रा वाउचर उस पर्पज के लिए होता है। तो समझ गए आप, जब आप कैश को विड्रॉ कर रहे हो बैंक से तो भी आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज करोगे, और जब कैश आप डिपॉजिट करोगे बैंक में, उन दोनों ही केसों में आपको कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है। ठीक है ना? बाकी पेमेंट वाउचर आपको हमने बता ही दिया। नेक्स्ट आपका आता है रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर आपके अपने नाम से ही पता लग रहा है कि जब आप पेमेंट को रिसीव करोगे, अमाउंट को किसी से रिसीव करोगे, तो रिसीट वाउचर यूज करोगे आप। ठीक है, और सबकी शॉर्टकट की सामने लिखी हुई है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं सबके सामने को आप सबकी शॉर्टकट की लिखी है। जैसे कि आपकी कॉन्ट्रा की F4, तो ऊपर से जो फंक्शन वाले कीज होती है ना F4, वो प्रेस करोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। F5 से पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है F7 जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर किस लिए यूज होता है? जनरल वाउचर हमेशा एक्सपेंस के लिए यूज होता है मैक्सिमम। क्या होता है, जो जनरल वाउचर होता है वो जनरली यूज होता है, और जनरली किस लिए? एक्सपेंस को क्लेम, एक्सपेंस की एंट्री करने के लिए यूज होता है जनरल वाउचर। आप नॉर्मली यही समझो। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सेल्स वाउचर, और सेल्स वाउचर आपके नाम से पता लग रहा है, जब आप सेल करोगे तो आप सेल वाउचर यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद F9 से क्या है आपका परचेज वाउचर। परचेज वाउचर आप तब यूज करोगे जब आप परचेज करोगे। ठीक है, वो अपने नाम से आपको पता लगता चला जाएगा। अदर वाउचर्स, अदर वाउचर मतलब ऐसे होते हैं बिजनेस में कुछ और भी चीजें होती हैं। जैसे डिलीवरी नोट सुना होगा आप लोगों ने, DC डिलीवरी नोट हो गया, रिसीट नोट हो गए, इस तरीके के और भी, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस मैंने बताया था आपको पहले, कोटेशन हो गया। तो ये सब भी वाउचर हैं। तो ये सब वाउचर आपको डायरेक्टली डिफॉल्ट में नहीं मिलेंगे, इसको आपको इनेबल करना पड़ता है टैली में, वो आपके सारे अदर वाउचर में आ जाते हैं। ठीक है, जो ये वाउचर जो वाउचर इसमें नहीं दिख रहे, वो सारे अदर वाउचर में दिख जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद सारे वाउचर आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वाउचर वाला काम खत्म हो गया। अब हम चल रहे बैक। बैक में बताता हूँ किस लिए जा रहे हैं हम लोग। अभी हम जा रहे हैं बैक, और बैक किसे जाते हैं? कौन सी की होती है बैक जाने की? स्केप। एस्केप, यस यू आर राइट, एस्केप। और हमें हमें हमारे लेजर्स देख करने हैं, हमने कौन कौन से लेजर क्रिएट कर रखे हैं, तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले डिस्प्ले। डिस्प्ले में Display more जाएंगे। reports. डिस्प्ले में अकाउंट अकाउंट बुक, बुक में। और उसके अंदर फिर लेजर एंड में जाएंगे। लेजर। ठीक है, हाँ, तो DAL शॉर्टकट की थी। वैसे डिस्प्ले, अकाउंट्स और लेजर को जाके हम चेक कर सकते हैं हमारे किस किस के लेजर क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं चेक करने की हमें किस किस लेजर की जरूरत पड़ेगी जब हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, अमन की कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, और दूसरा हमें जरूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट की। देखो यहाँ पे बैंक दिख रहा है कहीं? बैंक बैंक, यहाँ बैंक नहीं है, तो हमें बैंक बैंक। क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा हमें यूज होगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे नहीं है, तो हमें वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्रिएट कहाँ से होता है? ऊपर ही लिखा हुआ मास्टर्स में, फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो भी कुछ क्रिएट करना है, चेंज करना है, सब कुछ मास्टर्स में होता है। अभी हमें क्रिएट करना है लेजर, तो हम सीधा क्रिएट में चले जाएंगे, सिंपल। क्रिएट पे जाके आपको एंटर प्रेस कर देना, क्रिएट। हमें जाना है फिर लेजर में, क्योंकि हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब लेजर मैंने क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे। चलो, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट किस में आएगा? अंडर किस में आएगा? बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। बैंक ठीक है, अकाउंट। बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। फिर उसके बाद आपकी बैंक अकाउंट में देखो, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट होल्डर नेम उठा रहा है ना, कंपनी का नाम, तो ये नाम अपने आप उठा लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें डिटेल डालनी होती है, अकाउंट नंबर। मैं तो कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आपको सही डालना है। अकाउंट नंबर आप डाल सकते हो, उसके बाद IFSC कोड। ठीक है, मान लो उसका HDFC बैंक है तो HDFC 00164। ठीक है, इस तरीके से IFSC कोड डाल सकते हो आप, डालना है आपको। उसके बाद स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट कोड यूज होता है बाहर ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, IFSC कोड क्या होता है? जैसे हम इंडिया इंडिया में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन जब हम बाहर पेमेंट करेंगे या बाहर से पेमेंट रिसीव करेंगे, तो हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने मान लो आपको जर्मनी भेजना है पैसा, या जर्मनी से पैसा रिसीव करना है, तो आपको वहां पे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। बाकी इंडिया इंडिया में करना है सब कुछ, तो IFSC कोड इज मोर देन इनफ, मतलब इसी से ही हो जाएगा।
उसके बाद आपका बैंक का नाम, आप बैंक नाम डाल सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब एंटर कर देना, फिर आप अपने ब्रांच का एड्रेस डाल सकते हो, स्टेट डाल सकते हो, वहाँ का पिन कोड डाल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे 110016 ले लेता हूँ। जीएसटी, अगर बैंक का जीएसटी नंबर है आपके पास, देखो बैंकों के जीएसटी नंबर भी होते हैं, तो आप जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो। जीएसटी नंबर नहीं है तो वो हमें देखो येलो इंडिकेटर दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप एंटर एंटर करते जाओगे, फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपने एक्सेप्ट कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि आपका बैंक अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। अमन, अमन कैपिटल अकाउंट। अब अमन अमन का कैपिटल अकाउंट किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। यस, जिज्ञासा कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आप अमन का एड्रेस डाल सकते हो, जहाँ पे अमन रहता है, उसका डिटेल, पिन कोड, ये सब डिटेल आप फिल कर सकते हो। अब हमारे पास अमन का भी अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हमारे पास पहली एंट्री तो हमारे पास हो सकती है, जो 5 लाख रुपए उसने सेल्फ इन्वेस्टमेंट लगाई थी, उसकी एंट्री हम अब कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अभी हम और चेक कर लेते हैं हमें और कौन कौन से लेजर की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो अब हम ही क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले आपका एक और क्या आ रहा है आपके पास, सबसे पहले परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल। आपने क्या करा, मान लो फर्नीचर में आपने चेयर ही ले ली, ठीक है, तो अब हमें चेयर बनानी पड़ेगी। अब चेयर कहाँ से बनेगी, अब वो देखते हैं, चलो। अब इसको बैक करना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि चेयर हमारा लेजर नहीं है। चेयर हमारा क्या है बताओ? हमारे हमारे बिजनेस में चेयर क्या है? Goods. फिक्स्ड एसेट। स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक है, क्या है हमारे लिए? वो स्टॉक है हमारे लिए, ठीक है। तो वो लेजर से नहीं बनेगा, वो स्टॉक में बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मैंने बताया इन्वेंटरी का अलग होता है मास्टर्स, ठीक है। फिर एस्केप एस्केप से बैक चले जाएंगे, फिर से आपको क्रिएट में जाना है, क्योंकि देखो क्रिएट में आ जाओगे। अब क्योंकि हमें स्टॉक क्रिएट करना है, तो फिर हम क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है स्टॉक। स्टॉक आइटम बनाना है, हमें कोई ग्रुप नहीं बनाना है, हमें स्टॉक आइटम बनाना है। तो मैं स्टॉक आइटम में चला गया, ठीक है। अब स्टॉक आइटम में क्लिक करते मेरे पास फिर से पूछने लगा आपको क्या डालना है, तो मैं क्या डालूंगा, फर्नीचर की जगह मैंने डाल दिया चेयर, ठीक है, कुर्सी। अच्छा, ये कह रहा, अच्छा ऑलरेडी, ये कह रहा है कि चेयर ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास। कोई बात नहीं, मैंने बना दिया होगा पहले कभी। तो हमें कहा चेयर अकाउंट कर देते, ठीक है। अब चेयर अकाउंट, अब चेयर अकाउंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कुर्सियां खरीदेंगे, तो हमने कुर्सी का एक स्टॉक बना दिया। अब यहाँ पे प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है कि कोई गोडाउन वोडाउन नहीं है। जैसे प्राइमरी में किसके अंडर आता है, तो आप उसको अंडर अंडर कर सकते हो, आप बना सकते हो, किसी के भी अंडर डाल सकते हो। तो उसे यूनिट आता है। अब यूनिट में देखो, अब आपने जो चेयर बेचोगे वो नंबर में बेचोगे, या फिर आप पीस में बेचोगे, या फिर आप सेट में बेचोगे, आप किस मेजरमेंट के साथ आप किसी चीज को बेचना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे कई चीजें जो होती है वो बैच में होती है, तो बैच में बेची जाती है। कुछ चीजें नंबर्स में होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें पीस में होती हैं, कुछ चीजें सेट में होती हैं, कुछ चीजें मीटर्स में बेची जाती हैं। जैसे आपके कपड़े हो गए, अब कपड़े कैसे बिकते हैं, कपड़े हमेशा मीटर के माप पे बिकते हैं, 5 मीटर 10 मीटर, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे मीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका बनाना का बिजनेस है या कुछ और बिजनेस है जिसमें डजन यूज होते हैं, तो आपको वहां पे डजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट आपको खुद बनानी है। तो यहाँ पर देखो वैसे नंबर बना हुआ है, क्योंकि मैंने ना अभी चेयर और वो बना दिया था, इसलिए मेरे पास चेयर ऑटोमेटिक बना हुआ आ रहा था। तो अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे एग्जाम्पल मान लो आप पीस में बेचते हो, 1 पीस चेयर गई, 2 पीस चेयर गए, तो आप पीस में करते हो, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। आप यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करोगे, सिंबल, सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, सिंबल, मतलब पीसीएस। क्या होता है? पीसेस, हाँ, सिंबल में आ यस गया सर। शॉर्टकट, पीसेस का शॉर्टकट पीसीएस, पीसेस, पीसीएस पीसीएस। ठीक है। और फॉर्मल नेम क्या होता है, PEICES, पीसेस। ये पीसीएस हो गया उसका पीसीएस। फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम उसका, जो उसका नाम होता है, यस ठीक है। अब यहाँ पर रूल अभी आ रहा है, टैली के द्वारा बनाया गया UQC, दिस इज द यूनिट यूनिट क्वांटिटी कोड। अब यहाँ पे भी आपको पीसेस ढूंढना होगा, पीसेस कहीं ना कहीं होगा, देखो ये रहा। देखो यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं कि किस किस चीजों में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, देखो बैग है, बंडल्स है, बक्कल्स है, बिलियंस ऑफ है, बॉक्सेस है, बॉटल्स है, बंचेस है, कैंस है, बहुत सारी चीजें, मीटर्स है। अगर कोई एक्सपेंसिव आपको नहीं पता है उसको किस चीज में बेचा जाता है, तो आप उसको अदर्स में भी डाल सकते हो। अभी हमें पता है हमें पीसेस में डालना है, तो मैंने पीसेस को सिलेक्ट किया, एंटर किया।
और डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है कि वो चीज प्रपोर्शन में बिक सकती है। जैसे कि एक चेयर बिक जाएगी, क्या 1.5 चेयर बिक सकती है? क्या 1.3 चेयर बिक सकती है? नहीं बिक सकती। तो यहाँ पे 0 डेसिमल यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन मीटर कपड़े में तो हो सकता है ना कि 1 मीटर ना होकर 1.5 मीटर का कपड़ा, आपने 1.5 मीटर के आप फैब्रिक को सेल कर रहे हो, तो उस केस में आप उसमें डेसिमल यूज कर सकते हो। लेकिन ठीक है, लेकिन हमारे पास तो पीसेस में बिकेगा वो चेयर। चेयर कभी 1.3 चेयर थोड़ी बिक सकती है मार्केट में। तो हम इसको हमेशा क्या लेंगे, विदाउट डेसिमल यूज करेंगे। तो 0 ही लेंगे इसके अंदर, ठीक है। 0 मैंने एंटर किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक मेरा पीस आ रहा है। उसके बाद आता है जीएसटी अप्लीकेबिलिटी। क्या इस पे जीएसटी अप्लीकेबल है या नहीं है? अगर जीएसटी अप्लीकेबल है उस प्रोडक्ट के ऊपर तो आप जीएसटी अप्लीकेबल कर देना। नहीं होगा तो फिर आप उसको नोट अप्लीकेबल भी कर सकते हो, ठीक है। अप्लीकेबल कर दे रहा हूँ अभी तो मैं। उसके बाद आप यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपको एचएसएन और सैक कोड देना है, ठीक है। अब एचएसएन और सैक मैंने आपको भी बताया था पिछली क्लास में, एक यूनिक कोड होता है प्रोडक्ट के लिए, एक यूनिक कोड होता है जिस कोड से मेजरमेंट होती है स्टॉक की, ठीक है ना। अब एग्जांपल आप ले लो, आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लो आप इंडिया में कोई फर्नीचर का एक चेयर बेच सेल कर रहे हो। तो चेयर का जो आप सेल करोगे, तो उसका, आप तो चेयर बोलोगे लेकिन बाहर देश में उसको लोग और कुछ और बोलते हैं। बाहर देश में उस चेयर को वो चेयर थोड़ी बोलेंगे, वो अपनी भाषा में कुछ और बोलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, सबको समझने के लिए, एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए चीजों को, हमने क्या करा है, एक एचएसएन नंबर बना दिया है, ठीक है ना। हार्मोनाइज कर दिया सिस्टम, नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म ये होती है। और सैक का मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, सैक नंबर बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, यूनिक नंबर होते हैं इन चीजों के। अब जैसे आपको यहाँ पे एचएसएन नंबर डालना है चेयर का, ठीक है, तो आप सीधा गूगल पे जाओगे, आपको दिख जाएगा। सीधा गूगल पे आप सर्च मारो चेयर एचएसएन नंबर। आपने सीधा सर्च किया, आपके सामने देखो फर्स्ट लाइन पे आ गया, एचएसएन कोड फॉर चेयर सीट इज 9401। 9401 इज एचएसएन नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओवरऑल वर्ल्ड यूज होता है ये एचएसएन नंबर। अब यहाँ पे आप डाल दो स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर 9401, ठीक है। 9401 आप एंटर कर दोगे। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया कि उस स्टॉक का फुल नेम, फुल नेम भी वही हमारा चेयर अकाउंट ही है, हम चेयर अकाउंट डाल देंगे। अब यहाँ पे जीएसटी रिलेटेड रेट्स पूछ रहा है कि इस कुर्सी पे कितना रेट होता है, जीएसटी का क्या रेट होता है, 18% रेट होता है, ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल ईयर। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं है, या फिर जीएसटी है, या फिर नील रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल का मतलब है कि वो जिस पे जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल कर दो आप, और रेट कर दो 18%, जितना परसेंट रेट है। अब सप्लाई में देखो, टाइप ऑफ सप्लाई में क्या है, गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, या फिर सर्विस है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि हमारा ये स्टॉक वाला पार्ट है। गुड्स हमारे क्या होते हैं, स्टॉक ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी वही सेम है, जीएसटी 18%। उसके बाद यस, अब आपकी चेयर भी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमें क्या चाहिए चेयर के अलावा। हमने देखो चेयर भी बना दी। अब हमें बनाना रेंट का लेजर। रेंट का शायद हमने बना दिया था कल, रेंट सैलरी एंड वेजेस का बना दिया था। अब चेक करने के लिए सिंपल आपको सर बैक सब करके बता जाना है। दिया था। DAL वो ही आपका डिस्प्ले अकाउंट जाके फिर लेजर में चेक करना है कि आपने रेंट, यस रेंट हमने बना दिया है। सैलरी भी हमने बना दी है, ठीक है। रेंट और सैलरी हम बना चुके हैं। पीजीज भी बन गए। वेज भी बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने बना रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बना रखा हमने, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना पड़ेगा हमें, एक हमें लोन का इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी आई थिंक बना हुआ है। एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस भी आपका बना हुआ है पहले से, ठीक है। तो आपको सिर्फ अब रह के गया आपका यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और और आपका लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही आप सेम प्रोसीजर में जाओगे, क्रिएट लेजर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है? क्या हो गया, सब शांत हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस। हाँ, इनडायरेक्ट इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है हम्म। आप किस चीज का काम कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन में वो बिजली यूज हो रही होगी, जैसे प्रोडक्शन में यूज होगी ना आपकी, जब
आप लाइट लगाओगे, कटिंग करोगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना। तो आपकी क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस होगी आपके बिजनेस के लिए। यही मान लो आपका प्रोफेशनल सर्विस का बिजनेस होता तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का तो ऐसा कुछ डायरेक्ट प्रोफेशनल में यूज होता नहीं, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट बन जाता। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी ये सारी नीचे वही चीजें, जीएसटी कोड, एचएसएन नंबर, वही सब चीजें हैं। तो बार बार मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, उसके बाद हमें क्या बनाना था, लोन इंटरेस्ट। अब लोन इंटरेस्ट क्या है, हमारा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें नीचे एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। हमारा लोन भी बन गया। अब हमारा देखो, लोन भी हो गया, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, सैलरी भी हो गया, वेजेस भी हो गया, रेंट भी हो गया, परचेज भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकम के अंदर। अब इनकम में हमारे पास सर सेल्स में क्या क्या, परचेज अकाउंट नहीं बनाया। नहीं परचेज अकाउंट तो ऑटोमेटिक लेजर है ना उसका, परचेज का तो लेजर बना हुआ है। आपने देखा नहीं वाउचर्स के अंदर परचेज। सर वो तो मतलब जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं तो उसमें जैसे एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट टू मतलब क्रेडिटर का नाम लिखते हैं उसमें। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। तो वो अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना हमें ऐसे नहीं वो, सेल्स हाँ में। हाँ हाँ, वो जो सेग्रीगेट करते हैं ना परचेज में, कि जीएसटी वाला परचेज, हाँ जीएसटी जी। परचेज है या नॉन जीएसटी परचेज है, वो एंट्री के टाइम पे बनाएंगे हम, वो भी नहीं बना रहे, ठीक है ना। सर वो एंट्री के टाइम पे बनाएंगे, वो हम एंट्री टाइम जो आप कह रहे हो ना, परचेज अकाउंट जो हम बनाते हैं वो इंटरनल बनाते हैं, वो हम एंट्री के टाइम पे बनाएंगे कि परचेज जीएसटी है फिर नॉन जीएसटी है, ठीक है। अगर आप कहते हो तो अभी बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं आते हैं सर हम उसके, मतलब जैसे हाँ हाँ, नहीं यूज होगा, वो बाद में यूज होता है ना, इसलिए मैंने अभी नहीं बना रहा उसको, मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। अब आते सर हैं सेल्स के इसमें अंदर। हम्म। सर इसमें सेल्स का भी होगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, सेल का भी होगा, सेम जैसे परचेज का होता है सेम सेल्स का भी होता है। जिस तरीके से परचेज की बनती है ना, देखो आप क्या होता है, मार्केट में कई तरीके की सेल होती है और कई तरीके की परचेज होती है। अब देखो, हर परचेज तो नॉर्मल परचेज नहीं हो सकती। कुछ परचेज ऐसी होगी जिसमें जीएसटी लगेगा, वो होगी जीएसटी वाली परचेज, जीएसटी। और कुछ ऐसी परचेज होगी जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा, परचेज नॉन जीएसटी। और कुछ ऐसी परचेज होगी जो जीएसटी और नॉन जीएसटी दोनों ही नहीं होगी, पता है क्या, परचेज इंपोर्ट, जो आपने किसी बाहर कंट्री से मंगाया। तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए हम परचेज के 3 लेजर क्रिएट कर देंगे, परचेज विद जीएसटी, परचेज विदाउट जीएसटी, परचेज एक्स इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो वो लेजर हम बाद में बनाएंगे, जब वहां पे हम सीखेंगे ना, तो वहां पर बनाएंगे, जब हम एंट्री करेंगे तब वो वहां पे बन जाएगा। और वही सेम सेल्स के अंदर भी होगा, सेल्स विद जीएसटी, सेल्स विदाउट जीएसटी, सेल्स एक्सपोर्ट, ठीक है शीतल, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ, जब हम सेल करेंगे तब हम उस लेजर को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब आता है आपके ऊपर सेल्स का। अब सेल में 50,000 रुपये, 50,000 रुपये की हमने सेल करी थी फर्नीचर, वही चेयर हम सेल करेंगे 50,000 में। उसके बाद एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, रेंटल इनकम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है। फटाफट हमें बनाने पड़ेंगे चीजें। सबसे पहले हम बनाते हैं एफडी इंटरेस्ट, तो हम लिख देते हैं एफडी, एफडी इंटरेस्ट। फटाफट मुझे आंसर देना, अब एफडी इंटरेस्ट किस में आएगा। इनडायरेक्ट इनकम। नाइस, इनडायरेक्ट इनकम। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, मैं सेव कर दे रहा हूँ। हाँ, एक शॉर्टकट की ओर बताता हूँ, ऑटोमेटिक जल्दी सेव करने का ऑप्शन होता है कंट्रोल ए, ठीक है ना। जैसे हमारी एक्सेल और वर्ड में क्या होता है, कंट्रोल एस, तो इसी तरह हमारे टैली में सेव करने का, एक बार में सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल ए, ठीक है ना। अब हमारा एफडी का इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद हमारा आता है रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम किस में आएगा, किस लेजर में आएगा, अंडर इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। फिर इनडायरेक्ट इनकम बना दिया हमने, रेंटल इनकम भी हमारा बन गया, लेजर बन गया। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इनकम में। इन्वेस्टमेंट इनकम को अभी मैं इन्वेस्टमेंट इनकम नाम से ही बना देता हूँ, ठीक है। या किस, आपको डिविडेंड बना दूं। देखो शेयर में हमने एग्जांपल ले लेते हैं, हमने शेयर इन्वेस्ट कर रखे थे, शेयर पे हमें 20 डिविडेंड मिल गया। चलो इन्वेस्टमेंट के नाम से ही बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा सर। इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें क्या है, रिटर्न आया है, क्या है, जी जी। इन्वेस्टमेंट की इनकम हुई है, ठीक है। तो ये होगी तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन इनकम किस चीज से होता है, चेयर, फर्नीचर को सेल करके सेल और करके डिलीवरी तो वो के, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा।
हाँ वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, वो हमारी सेल का पार्ट बन जाएगा, वो इनकम क्या हमारी सेल है सीधी वो तो। ये हमने डायरेक्टली सेल किया ना। हाँ डायरेक्टली सेल कर दिया, आपका इन्वेस्टमेंट होगा, सर्विस इनकम आ गया, ठीक है, सर्विस इनकम। सर्विस इनकम क्या होता है, ये हमारे गुड्स से रिलेटेड है, याद रखना, ये सर्विस इनकम है ये गुड्स से रिलेटेड है, क्योंकि हम गुड्स की डिलीवरी करके उसको ऑन कर रहे हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका देखो सर्विस इनकम क्रिएट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रिएट हो चुका है, रेंटल इनकम हो चुका है, एफडीआर इंटरेस्ट भी हो चुका है। अब सेल्स, अब हाँ अब दो चीजें और बनानी है। क्या बनानी है, सन्डी डेटर और सन्डी क्रेडिटर, ठीक है, जिसको हमने मटेरियल मटेरियल बेचा और इससे हमने मटेरियल लिया। चलो बताओ, शीतल का ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शीतल से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। तो चलो शीतल, पूरा नाम क्या था शीतल आपका, शीतल, चलो सोई नहीं शीतल। अब शीतल जो है, शीतल हमारे देखो, शीतल से हम मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम शीतल से मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, तो शीतल मेरे लिए डेटर बनेगी या क्रेडिटर बनेगी, ये मैंने पढ़ाया था। क्रेडिटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर बनेगी, वेरी नाइस, क्या बनेगी, क्रेडिटर बनेगी, क्योंकि हमें शीतल को पैसे देने होंगे। अब यहाँ पे देखो शीतल की डिटेल आपको डालनी है। मेंटेन बैलेंस बिल टू बिल, मतलब क्या होता है इसमें, कि बिल टू बिल आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे शीतल के 5 बिल आए, मैंने आपको ये भी पहले बताया था, शीतल के 5 इनवॉइस आ गए, ठीक है। 5 इनवॉइस, मान लो थाउजेंड थाउजेंड के 5 इनवॉइस आ गए, तो आपने 2,000 की पेमेंट करी, तो आपने पहले 2 इनवॉइसों की पेमेंट करी, तो उसको आपको एडजस्टमेंट जो करनी होती है उसको बोलते हैं बिल टू बिल एडजस्टमेंट। और दूसरा होता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है, कि शीतल जो है, शीतल जो है हमें कितना क्रेडिट पीरियड दे रही है। शीतल बोलेगी कि मैं आपको फर्नीचर सेल कर दूंगी, तो आप मुझे 30 दिनों के अंदर पेमेंट दे देना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड, ठीक है। 30 दिन भी होता है, 45 डेज भी होता है, 100% एडवांस भी होता है, ठीक है। तो वो क्रेडिट पीरियड होता है। बाकी शीतल का जैसे आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, शीतल कहाँ की है, उसका स्टेट एड्रेस पिन कोड, उनका बैंक डिटेल यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ बैंक डिटेल पूछेगा, ठीक है। बैंक डिटेल डाल सकते हो आप, उनका पैन नंबर डाल सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है वो डिटेल डाल सकते हो। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रेगुलर डाल देना, अगर वो नहीं रजिस्टर्ड तो अनरजिस्टर्ड डाल देना, ठीक है। अभी हम जीएसटी नहीं सीख रहे तो हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जीएसटी की डिटेल को ऑल्टर करने के लिए ऑप्शन है, एंटर करके हमें सेव कर देना है। अब शीतल बन चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है जिसको हम बेचेंगे, अब बेचेंगे किसको, सारिक खान को, सारिक खान। तो सारिक खान को हम सेल कर रहे हैं, तो सारिक खान क्या बनेंगे हमारे, सन्डी डेप्टर। सन्डी डेटर, ठीक है। क्योंकि सारिक खान को क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनको भी हम 45 डेज का क्रेडिट पीरियड दे देते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उनका एड्रेस पैन नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब आपकी सारी एंट्रीज सारे लेजर क्रिएट हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम रेडी हो चुके हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो एस्केप एस्केप करके बैक हो जाओ, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फिर हम वाउचर में जाएंगे, ठीक है ना। अब वाउचर में जाके हम जब भी कैपिटल की एंट्री करते हैं हमेशा जनरल से करते हैं, किससे करते हैं, जनरल वाउचर से करते हैं, क्योंकि जनरल है। अब डेबिट आ रहा है, तो डेबिट क्या करेंगे जल्दी बताओ, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है मिस्टर अमन, तो क्या एंट्री होगी, कैश की एंट्री होगी, कैश डेबिट। कैश नहीं, बैंक, बैंक, हम बैंक से पैसे ले बैंक रहे हैं ना, बैंक बैंक। तो बैंक। बैंक हो गया 5 लाख से डेबिट। ये देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है चेक से लिया है आपने, कैश में लिया, कैसे लिया है, तो यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हो, इसमें भी डाल देता हूँ 000001, ठीक है। पहला ही चेक था, 6 नंबर के चेक नंबर होते हैं, तो मैंने चेक नंबर 001 डाल दिया। बैंक नेम आप कोई से भी डाल सकते हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी बैंक नेम नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हो, नथिंग सिलेक्टेड, ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिट क्या हो जाएगा, अमन का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमन पे हमारी लाइबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी बिजनेस की, 5 लाख रुपए की। और यहाँ पे नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, कि आपने जो ऊपर एंट्री की है वो क्यों की है एंट्री, उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे आपको रीजन डालना पड़ेगा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर मिस्टर अमन, ठीक है जी। मिस्टर अमन ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए आ चुके हैं। अब 5 लाख रुपए आए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी शेयर को परचेज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेयर को परचेज करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है फर्नीचर, जो हम चेयर परचेज करेंगे, 20,000 रुपए का हम चेयर परचेज कर रहे हैं। तो चलते हैं परचेज एंट्री करने में। परचेज वाउचर देखो राइट साइड में किस किस फंक्शन से परचेज वाउचर आएगा हमारा, F9 से,
तो हमने क्या करा, F9 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो इनवॉइस हमको शीतल इनवॉइस देंगी कि मेरा इनवॉइस नंबर जो भी है, यहाँ पे हम 001 डाल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी डेट तो आप 1 अप्रैल ही रख दो। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, मतलब हम किससे परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं शीतल से। शीतल से परचेज करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट नंबर है, डिस्पैच थ्रू, मतलब क्या है कि शीतल जो प्रोडक्ट हमें चेयर दे रही है वो किसके थ्रू दे रही है, डीटीडीसी के थ्रू दे रही है, ब्लू डार्ट के थ्रू दे रही है, कौन सा कोरियर एजेंट है हमारा, कौन सा हमारा ट्रांसपोर्टर है, उसकी डिटेल डालनी है, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कहाँ पर आएगा, एग्जाम्पल दिल्ली में आएगा, ठीक है जी। बाकी वही एजेंट की नाम है, डिटेल है, और डेट आज की ले लो, आज ही डिलीवर हो रहा है मटेरियल, तो आपकी आज की डेट दे सकते हो। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ मोटर व्हीकल नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो जो जिस व्हीकल से हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, वहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं। एंटर डालने के बाद शीतल का आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते हैं, फिर आपको एंटर एंटर कर देना सारी डिटेल। और हाँ, अब यहाँ पर आएगा परचेज में कौन सी वाली परचेज कर रहे हो। हम कर रहे हैं परचेज विदाउट जीएसटी। तो यहाँ पर जब भी आपको बीच में लेजर बनाना हो, कभी भी आपको एंट्री के अंदर बाहर जाके ना लेजर क्रिएट करना हो, एंट्री के अंदर ही अगर आपको लेजर क्रिएट करना हो, तो एक ओल्ड शॉर्टकट की होती है, Alt+C। अगर आप सब पेन कॉपी ले रखे हो तो अभी ओल्ड लिख लो आप, बाकी मैं शॉर्टकट की तो आपको कल ही दूंगा, ठीक है। Alt+C से क्या होता है, लेजर क्रिएट होने का शॉर्टकट तरीका ये है। कहीं पर भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज विदाउट जीएसटी। और परचेज किस में आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो मैंने परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया, बाकी वो सारी डिटेल वही सेम है, एचएसएन नंबर, सैक नंबर, ठीक है। अब हमने क्या परचेज किया शीतल से, चेयर। तो आप सबके सामने चेयर अकाउंट दिख रहा है। चेयर अकाउंट पे क्लिक करो। हमने एक चेयर परचेज करी शीतल से 20,000 रुपीज की। तो रेट कितना हो गया, 20,000 रुपीज का रेट हो गया। एंटर एंटर कर दो आप। जीएसटी है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि हमने परचेज विदाउट जीएसटी परचेज किया। एंटर करने के बाद रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का रेफरेंस नंबर, मतलब इस रेफरेंस नंबर के बाद ही इसी रेफरेंस नंबर पे पेमेंट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बिल टू बिल मेंटेन करना, ठीक है। अब उसके बाद लिखोगे बीइंग परचेज चेयर, ठीक है जी। अब हमने चेयर परचेज कर ली। अब चेयर परचेज करने के बाद, चेयर परचेज करने के बाद हमारे पास रेंट का एक्सपेंस आ रहा है। रेंट का क्या है, 10,000 रुपये का एक्सपेंस है, ठीक है। अब रेंट क्या है, हम तो रेंट पे करेंगे, तो पे करने का वाउचर कौन सा है, देखो बताओ पेमेंट वाउचर कौन सा है, F5। और पेमेंट किससे करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे। तो बैंक अकाउंट, रेंट, रेंट कितना है हमारे पास, 10,000 पे था। 10,000 10,000 ना, 10,000 10,000, ओके। यहाँ पर भी चेक से पेमेंट कर रहे हो, किससे पेमेंट कर रहे हो, या ई ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, वो आप डिटेल सेलेक्ट कर देना। बाकी नरेशन में डाल देना। आपने रेंट पे कर दिया, ठीक है। आपकी नेक्स्ट एंट्री, सैलरी एंड वेजेस। तो अभी हम सैलरी एंड वेजेस तो हमने इंक्लूड एक ही में कर रखा है। जब भी सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड हो तो आपको हमेशा वेजेस कंसीडर करना है, ठीक है। जब भी साथ में लिखा हो, कंसोलिडेट लिखा हो, तो वेजेस वेजेस कंसीडर करना है। अदरवाइज आप इनको बाय टिकट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम वेजेस में 25,000 रुपीज डाल रहे हैं। पेमेंट बैंक अकाउंट से वेजेस 25,000 रुपीज, ठीक है जी। हमने वेज पे कर दिए। वेजेस पे करने के बाद अब आज इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 पे कर दिए। चलो जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं 2,000 रुपये। बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी 2,000। अब ऐसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमने पे कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के बाद आपका आता है लोन का इंटरेस्ट, वो भी बैंक से ही। लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट आपका 2,000 रुपये का है, और मार्केटिंग आपका 5,000 रुपये का है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग हो गया। लोन इंटरेस्ट आपने 2,000 पे कर दिए। अब आपका आता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आप कितना पे कर रहे हो, 5,000 रुपीज, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल एंट्रीज है, और मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका देखो इस साइड के सारे काम हो गए। परचेज हो गया, रेंट हो गया, सैलरी, यूटिलिटी, लोन, मार्केटिंग, सब हो गया। अब आते हैं इनकम साइड में। अब हमने सेल करी 50,000 रुपए की, और सेल किसको करी थी, साकिर को, ठीक है। सबसे पहले सेल। अब सेल का वाउचर कैसे आता है, F8 से आता है, ठीक है।
अब पार्टी नेम क्या है? पार्टी नेम है साकिर खान। वही सेम डिटेल, डिस्पैच किससे करेंगे वो सारी डिटेल आप डाल दोगे, फिर साकिर का एड्रेस डिटेल पिन नंबर वो सब डाल दोगे। अब यहाँ पे हमको फिर से लेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स विदाउट जीएसटी, क्योंकि बार परचेज विदाउट जीएसटी हुआ था, हमारा सेल विदाउट जीएसटी हो जाएगा। और शॉर्टकट की टू क्रिएट द लेजर क्या होता है, हमारा ओल्ड सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे क्या बनाओगे आप, सेल्स विदाउट जीएसटी, ठीक है। और सेल्स किस में आएगा? सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सेल्स सेल्स अकाउंट। अकाउंट, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट में जैसे ही आएगा, फिर आपने क्या सेल किया, चेयर, कितनी सेल करी, एक, 50,000 रुपीज की, फिर आप एंटर करके सेल कर दोगे। अब हेलो सेल के बाद मैं, सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। जैसे हम सेल कर रहे हैं चेयर, जैसे सेल्स करी या मतलब परचेज करी, तो पार्टी नेम में मतलब उनका नाम आ जाएगा जिसको करी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है ना। उसी को तो सेल करोगे आप पार्टी नाम से, तो बाद में ट्रैक कैसे करोगे किसको किसको मटेरियल आपने सेल किया है? पार्टी के नाम से सेल ट्रैक करोगे ना। अब नेक्स्ट आता है एफडी का इंटरेस्ट, ठीक है। तो एफडी का इंटरेस्ट क्या होगा, हमें रिसीव होगा, और रिसीव का लेजर क्या होता है, F6। पैसे F6। किस में आएंगे, बैंक अकाउंट के अंदर, एफडी इंटरेस्ट। अब एफडी का इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 500 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है एफडी के साथ, आपको रेंटल इनकम भी मिल रही है, जो आपने रेंटल इनकम लगा रखी थी बिजनेस के अंदर, वो भी कहाँ मिलेगी, बैंक अकाउंट के अंदर, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम है कितनी, 15,000 रुपीज, ओके। अब रेंटल इनकम के बाद आपका क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम 2,000, इन्वेस्टमेंट इनकम 2,000 रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम भी आपने रिसीव कर ली। इन्वेस्टमेंट के आपके पास आपकी सर्विस इनकम आती है, वो भी आपके अकाउंट अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आपने सारी एंट्री फीड कर दी, ठीक है जी। अब आपने सारी एंट्री फीड कर दी, और फीड करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए टैली में, वो आना चाहिए 6,500 रुपीज। अब लेट्स सी, चेक करते हैं कि हमारा इतना ही आ रहा है। अगर हमारा टैली में इतना ही हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारी टैली में जो अकाउंटिंग हुई है ठीक हुई है। और अगर गलत हो गई, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी एंट्री गलत फीड हो गई। चलो लेट्स, और हाँ, आप चेक कैसे करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर और पीएनएल के अंदर। हम क्या चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट्स में सेकंड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जा रहे हो तो आपको कितना आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज हो गई, क्या, अब मुझे कौन बताएगा 1,000 रुपये का डिफरेंस कैसे आया। ठीक है, 6,500 का प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन हमारा प्रॉफिट आ कितने का रहा है, 5,500 रुपये का आ रहा है। बताओ 1,000 रुपये का डिफरेंस कहाँ पे है। मैंने सारी डिटेल आपके सामने खोल दी, सामने देखो, सब आपको डिटेल में दिख रहा है। बताओ ये डिफरेंस कैसे आ रहा है। कोई ढूंढ पा रहा है नहीं, या फिर मैं खुद देखूं। पता लगा या दोबारा बताऊं, देखो, पता लगा या बताऊं फिर आपको। मैंने देखो हाईलाइट भी कर दिया है, किसी ने बताया नहीं मुझे अभी तक। सर्विसिंग सर्विस इनकम। हाँ, सर्विस इनकम यहाँ पे कितने की डली हुई है, 2,000 2,000। की। 2,000। और ठीक कितने की सर्विस इनकम, 3,000 रुपए की। तीन तो हजार सर्विस इनकम, हाँ, तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, मैंने इसीलिए एक एंट्री घुमा दी थी कि आपको वो पता लग जाए। जैसे आप 3,000 रुपये यहाँ पे ठीक करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस मैच हो गया, सिक्स यस सर। थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, हो गया मैच। तो इससे मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंट्री करना एक्यूरेटली कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक एंट्री भी, एक अमाउंट भी मिस कर दिया, तो आपका पीएनएल मैच नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी, हमारा 1,000 रुपये का
मैंने एक लूप होल डाल दिया था जानबूझ के कि आप लोग ट्रैक करोगे, आप पकड़ पाते नहीं, इसलिए मैंने 1000 रुपये का गैप रखा बस। चलो कोई नहीं, देखो हमारा 6500 रुपीज हमारा टॉली के अंदर मैच हो गया, ये रहा पीएनएल के अंदर। अब बाकी आप सब डिटेल देख सकते हो, सारी डिटेल हमने फीड कर दी है अपने पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम। किसी का कोई भी डाउट नहीं है? मतलब मैं अगर आपको आपको क्लास वर्क दूंगा मैं ये वाले इस तरीके का एक क्वेश्चन, तो आप क्या इस तरीके का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देंगे आप सेम? यस सर। पर सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जो आपने परचेज वाली जैसे चेयर की एंट्री करी है आपने इन्वेंट्री में, हम्म इन्वेंट्री मास्टरी की, तो वो समझ नहीं आ रही। जैसे हमने नॉर्मल पढ़ा 11th क्लास में भी, कि जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं, मान लो जो अमन है, अ, अमन हमारा ओनर है, और उसने मतलब परचेज करा है, जो हमारा राजा था मतलब उसमें, तो राजा से परचेज करा है, तो उसमें भी जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट हम्म। क्रेडिट, तो वो वाली हाँ, एंट्री नहीं हुई, तो इसमें मतलब गड़बड़ हो रही है थोड़ी। नहीं बिल्कुल वही एंट्री हुई है शीतल, तो जिज्ञासा सर, कौन? हाँ जी सर। बिल्कुल वही एंट्री हुई जो आपकी 11th 12th क्लास में एंट्री होती है ना, वो सेम हाँ वही जी। एंट्री हुई है आपकी। आप देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपको मैं किसका एग्जांपल दूं, शीतल का दूं या शकीर का दूं, पहले मुझे बताओ। पहले शीतल बैक का कर दे दो लेते हैं, सर। दोनों का देते हैं, चलो दोनों का देते हैं और बताओ। चलो शीतल खोलते हैं, ठीक है, शीतल का मैंने लेजर खोल लिया। सिंपल वही लेजर खोलने का शॉर्टकट की आपको जो मैंने बताया था, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, ठीक है। शीतल शीतल का मैंने लेजर खोल लिया, ठीक है, पूरे साल का शीतल का लेजर खोल लिया। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या आ रही है कि शीतल से हमने परचेज कर लिया, ठीक है। अब जब हमने शीतल से परचेज किया तो हमारे 11th में क्या एंट्री होती है? परचेज क्या अकाउंट कहते डेबिट हैं, टू शीतल। परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल, हाँ। शीतल, तो परचेज आपका डेबिट हो गया, शीतल आपकी क्या हुई? शीतल का लेजर क्या क्रेडिट। हुआ? क्रेडिट हो गया ना, क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है। और यहाँ पे देखो शीतल का देखो बैलेंस क्या दिख रहा है आपके सामने लेजर में? 30,000। क्रेडिट, क्रेडिट। और आपके परचेज में ऑटोमेटिक शो कर रहा था, अभी जब आप देख रहे थे 20,000 पे शो कर रहा था, 20,000 परचेज में डेबिट। अब आपको परचेज देखना है कि परचेज का डेबिट बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप परचेज भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो परचेज का देखो डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब समझ रहे हो, ये देखो डेबिट साइड के नीचे आ रहा है, देखो ये डेबिट साइड के नीचे आ रहा है। और हमारी 11th में क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल। तो परचेज जो आपने टैली में देखो, परचेज ऑटोमेटिक उसने डेबिट कर दिया और शीतल को ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया। बस फर्क क्या आता है, देखो मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या आता है, कि जब हम सीखते हैं ना तो हम उसमें स्टॉक की एंट्री नहीं करते, हम सीधा लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल। लेकिन जब हाँ हम जी एक्चुअल सर, लाइफ वही में मैं कह रही अकाउंट, हूँ। क्या टैली और में क्या? स्टॉक की एंट्री जो है ना वो अलग से होती है, मतलब जब हम स्टॉक, जब हम गोडाउन वगैरह वो करते हैं तो उसमें स्टॉक की एंट्री अलग करते हैं, तो ये नॉर्मल एंट्री। और जो आपने परचेज विद जीएसटी लिया ना, ये समझ में आया विदाउट मतलब। विदाउट जीएसटी, परचेज विदाउट जीएसटी। हाँ। हाँ, ये क्यों लिया, ये हम बिल्कुल नॉर्मल सिंपल एंट्री परचेज है। अकाउंट भी तो ले सकते। हाँ, आप परचेज अकाउंट भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन वो बेस्ट तरीका नहीं होता ना, जब स्टॉक कंजप्शन आप करते हो टैली में लाके आते हो ना, तो वो एक अलग चीज होती है। ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिक काम करता है। अब वहां पे तो बैलेंस शीट आपको हाथ से बनानी पड़ती है, पीएनएल स्टेटमेंट आपको हाथ से बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। अब बाकी ये एक थ्योरेटिकल लाइफ से रिलेटेड करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर चीज में थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये हमारी क्या है, एक टैली है, इसमें हर चीजें ना थोड़ी डिफरेंट नजरिए से देखनी पड़ती है। इसीलिए आपको लग रहा है, बिल्कुल वो आपका जेन्युइन डाउट है कि जब हम पढ़ते हैं वो चीज अलग होती है, जब टैली में सीखते हैं चीज वो अलग होती है। लेकिन हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है। वहां पर भी परचेज डेबिट होता है और यहाँ पर भी परचेज डेबिट होगा। वहां पर भी आपका पार्टी क्रेडिट होती है, यहाँ पर भी आपकी पार्टी क्रेडिट होगी। नेचर हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी सैप में किसी भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करो, कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज सेम, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। बट करने का तरीका और नजरिया चेंज हो जाएगा बस, ठीक है ना।
हाँ जी सर, ओके। बाकी आपको, और अगर आपको दूसरी वाली एंट्री भी करनी है वो भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे। और बताओ, नेचर हमेशा सेम रहता है। शीतल, शीतल, हाँ जिज्ञासा। यस। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ सर जी मुझे पूछिए। फिक्स एसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। सर फिक्स बिल्कुल। एसेट्स का रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है और कैसे बनाते हैं, और वो फिक्स किस एसेट का तरह का हो? रजिस्टर टैली में मेंटेन की पूछ रहे हो आप, एक्सेल में, या फिर नॉर्मल रजिस्टर मेंटेन करने की बात कर रहे हो? नॉर्मल रजिस्टर, और टेली में भी होता है क्या? और हाँ हाँ बिल्कुल होता है, देखो दिखाता हूँ आपको। एस्केप एस्केप करके आप बैक पे आ जाओ, और बैक करने के बाद आप बैलेंस शीट में आ जाओ, क्योंकि फिक्स एसेट हमेशा हमारा बैलेंस शीट में दिखता है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहाँ अफेक्ट करता है? बैलेंस शीट में, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। देखो मैंने जो पहले चीजें पढ़ा रखी है ना, अगर आप उनको ध्यान से दोबारा रिवाइज करके मेरी वीडियो को बार बार पढ़ोगे ना, तो आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वो चीज आपको दिख जाएंगी। जब बैलेंस शीट आ रहा है, देखो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट दिख गया आपको? यस सर। ये। तो ये जब आप एंट्री करोगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिक फिक्स एसेट का रजिस्टर अपने आप मेंटेन होता जाएगा। ठीक है ना? जैसे अभी जिज्ञासा ने पूछा था ना कि सर वो अलग होता है हमारे टेली में थोड़ा, और रियल लाइफ में अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। जैसे रियल लाइफ में हमें एफ रजिस्टर बनाना पड़ता है नोटबुक के अंदर, बट यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ जैसे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री करते आपका रजिस्टर ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। ठीक है ना? तो ये ऑटोमेटिक है, ये टेली क्या है, एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ खुद करता है। जस्ट आपको एंट्री फीड करनी होती है। यस। यस सर। सर ऐसे ठीक है। ऑफलाइन भी मेंटेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये ऑफलाइन ही चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर, जो टेली में चला रहा हूँ ये ऑफलाइन ही चल रहा है। नहीं सर, पेपर पेन वर्क वाला पूछ रही थी मैं। पेपर में वर्क मतलब? मतलब सर कॉपी जैसे में हम एक मेंटेन कर सकते कंपनी हैं? में, अच्छा, मैनुअली मेंटेन तो पहले जमाने में हुआ करता था, अब कहाँ होता है? अब तो एक्सेल्स में बनाते हैं, टैली में बनता है, सॉफ्टवेयर में बनता है। अब मैनुअली नहीं होता अब। ओके सर, थैंक यू। और और वेलकम। और किसी की कुछ क्वेरी हो फिर, या फिर हम वाइंड अप करें आज की क्लास? हेलो। हाँ जी सर, खान बताइए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था, वो जो आपने मतलब बताया था सर्विस इनकम का 1000 का जो मतलब डिफरेंस आया था, वो यस। शीट जो आपने ओपन करी थी वो एक बार बता दीजिए, मतलब कैसे ओपन करी थी, और मुझे बता दीजिए कैसे मतलब आया, मतलब किस अच्छा, तरह वो को। शीट कैसे आई थी? हाँ। वो हाँ वो आपको सीधे जब आप sheet- गेटवे ऑफ टेली में आओगे ना, हम्म। तो गेटवे ऑफ टेली में आपने एक लास्ट में देखा होगा, रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन था। हाँ, रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स के अंदर ना आपका एक पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा था, है ना? ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप खोल लोगे, आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अच्छा। वही था वो, वही ठीक है, तो तो था। वो तो मैं कर लूंगा। बट मुझे ना एक्चुअली बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी, तो मुझे एकदम मतलब देख के एकदम समझ में नहीं आया, मतलब किस तरफ क्या, मतलब अच्छा। वैसे मैं समझ गया था कि क्या हम्म। क्या मतलब एंट्रीज है, बट इस साइड किस साइड कौन सी थी और इस साइड कौन सी थी, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे लिखी अच्छा हुई थी अच्छा, ना। वो हाँ हाँ समझ गया हाँ। आपकी। तो उससे राइट थोड़ा साइड सा में मतलब इनकम, हाँ अच्छा, वो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्लास मेरी दोबारा होगी, मैं कल वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वैसे। एक लेफ्ट बार साइड में क्लियर हमेशा करा दीजिए। लेफ्ट साइड में वो आपकी क्या है, लेफ्ट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस थे, और राइट हम्म। साइड में आपकी सारी इनकम थी। ठीक अच्छा। है, बाकी मैं कल आपको डेप्थ में बता दूंगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा विक्की जी, आपने जितनी सारी ये एंट्री करी है, ये हाँ जी सब सर। वाउचर के अंदर करी है? इतने सारे वाउचर बनाए हैं आपने? नहीं सर, ये हाँ सर, वाउचर में की हमने सारी एंट्री। बाकी सर ये वाउचर्स ना ऑटोमेटिक बने होते हैं टैली में, जैसे आप देखा होगा आपने, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, ये सारे वाउचर सर डिफॉल्ट हमारे टैली में बने होते हैं। जस्ट हमको बस यूज करना होता है। जैसे अभी मतलब एक, आपने आपने एग्जिस्टिंग वाउचर्स के अंदर एंट्री करी है हर एक में? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं बस हर लेजर क्रिएट ट्रांजेक्शन किया की है। आपने एंट्री करी है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मतलब जो जो क्रिएट करे हैं, वो भी वाउचर क्रिएट करे हैं आपने? नहीं नहीं सर, वाउचर क्रिएट नहीं करे हमने, लेजर क्रिएट करे हैं। लेजर क्रिएट करे, ओके थैंक यू। हाँ। वाउचर तो सर जैसे आप देखा होगा आपने, कंपनीज में यूज करते हैं हम लोग, एक पेपर स्लिप टाइप से आता है, वाउचर बुक आती है, जिसमें हम एक्सपेंस का रिकॉर्ड, पैटी कैश मेंटेन करते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो एक एंट्री करने के लिए हमेशा हम वाउचर यूज करते हैं। लेकिन एंट्री में कंटेंट कौन सा आएगा, दैट इज कॉल्ड लेजर। तो वो जो कंटेंट होता है वो लेजर होता है। और जो लेजर जिसमें पोस्ट होता है वो वाउचर होता है। तो वाउचर के अंदर हमें आप एंट्री करनी आपने पड़ती है। आपने पढ़ाते टाइम एक सेंटेंस यूज किया था, इन टैली एंट्रीज आर मेड इन वाउचर्स। तो लेजर और वाउचर में क्या फर्क सर लेजर और वाउचर में यही फर्क है सर,
कि वाउचर मतलब क्या होता है। वाउचर एक टेम्पलेट है हमारे पास। वाउचर्स मतलब हो गया एक ब्रॉड टर्म हो गया हमारे पास। वाउचर जैसे कि सर आपके सेल्स वाउचर। अब सेल्स क्या है सर, एक सेल एक छोटा सा कोई एक्सपेंस नहीं है। सेल अपने आप में एक वाउचर है। जैसे सेल के वाउचर होते हैं जो सेल्स की एंट्रीज करने के लिए वाउचर बनाया गया है। एक परचेज का वाउचर होता है, वो परचेज की एंट्रीज करने के लिए परचेज वाउचर बनाया हुआ है। रिसीट, आप किसी से भी कोई पैसा रिसीव करते हो आपको उसको रिसीट नोट में डालना होगा, और रिसीट इज अ वाउचर। तो वाउचर हमेशा एक हेड है, इस उसके अंदर हमें एंट्रीज करनी पड़ती है। और जिस एंट्री जो हम करते हैं, जिस एंट्री के अंदर वो एक्सपेंस यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, शॉर्ट एंड एक्सेस, ये सारे सर हमारे लेजर होते हैं। तो मतलब आप टैली के लेजर, अंदर आपने जो इतने सारे क्रिएट करे हैं, यू हैव क्रिएटेड सो मेनी लेजर्स। लेजर्स, यस सर, आई हैव क्रिएटेड सो मेनी लेजर्स। ओके, थैंक यू। Voucher has already created by Tele default system. Yes, sir. ओके, थैंक यू। You're welcome, sir. Yes, I think सबकी क्वेरी सोल्व हो गई है मेरे हिसाब से। तो अभिषेक आप प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है थैंक तो यू। पूछो कोई भी। सर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी 46 स्टूडेंट्स हैं, 54 ज्वाइन करे थे, 8 चले गए लगता है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो जो डाउट है। आई थिंक सर टाइम हो गया, लेट्स वाइंड अप देन। सो आपसे से रिक्वेस्ट है अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में वोट कर सकें और रिकॉर्ड पर्पस। सो थैंक यू। इन द मीनवाइल आप अपने अटेंडेंस, अपने नाम और अपने फोन नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आगे हम आज की रीडिंग पर्सन मिस्टर पी के मल्होत्रा सर की ओर आगे बढ़ेंगे फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ दिस सेशन। ओवर टू यू सर प्लीज। आज की क्लास जो है श्री विकी गौतम ने बिजनेस एंड अकाउंट्स के टैली बेसिक पार्ट 3 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे एंट्रीज करते हैं वो बताया। पहले उन्होंने प्लेन डैशबोर्ड पे उन्होंने इंफॉर्मेशन बताई अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने की पॉइंट्स बताए कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या होता है। उन्होंने फिर एग्जांपल दी कि इनकम और एक्सपेंडिचर की डिफरेंट एग्जांपल्स दी। फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन उन्होंने बाहर डैशबोर्ड पे करके दिखाया। फिर बाद में टैली के सॉफ्टवेयर उन्होंने ओपन किया और उसमें सारी एंट्रीज करके दिखाई। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। आशा है कि सब पार्टिसिपेंट्स को ये समझ आया होगा। और नहीं समझ आया तो जैसा उन्होंने कहा कि उनकी पिछली क्लासों को अभी आप यूट्यूब पे उसको बार बार जो है 2-3 बार रिवाइज करो। क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो 20% समझ आता है, और 80% तब समझ आता है जब आप खुद उसको पढ़ते हो, उस पर चिंतन मनन करते हो। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जितनी भी क्लासें हैं उसको 2-2 3-3 बार जो है यूट्यूब के वीडियो चला के उसको चिंतन मनन करो। और बाद में मैं जैसे इन्होंने बोला है कि एक्सरसाइज देंगे, थोड़ी और एक्सरसाइजेज दें, असाइनमेंट दें, जिससे बच्चे जब तक खुद नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो वो अच्छा है कि विक्की गौतम जी और असाइनमेंट देंगे बच्चों को सबको, जो कि वो करें और फिर समझ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया और आप सबने भी बड़े शांति से और चुपचाप सुना। धन्यवाद। तो थैंक यू सर फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और आगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनुष्का नायर जी को। ओवर टू यू अनुष्का नायर जी। Thank you. Good evening, dear friends. I, Anushka, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks.
I am deeply thankful to Mr. Vicky Gautam sir for taking a wonderful session. We look forward to more such classes, sir. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to our President Jyotika Kalra ma'am for having taken so much interest in the training sessions. Wishing you all a very good night. Thank you. मैं एक चीज एक अनाउंसमेंट थी मेरे साइड से कि जिस स्टूडेंट्स की जिन्होंने कंपनी क्रिएट करी थी ना, उनके हमारे पास बस लिस्ट रेडी हो चुकी है मेरे पास। तो मैं अभी कुछ टाइम बाद ही मैं उस लिस्ट को पब्लिश कर दूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है। उसको पब्लिश करने के बाद जिन जिन के भी नाम होंगे वो अभिषेक सर को पर्सनली भेज देना अपने पेटीएम नंबर, ठीक है, नाम के साथ। तो आपके जो भी रिवॉर्ड होंगे वो आपको तभी ट्रांसफर हो पाएंगे, ठीक है। तो आज क्लास के बाद दो चीज़ें दूंगा मैं आपको। पहला एक आपको असाइनमेंट, जो आज की जो हमारी क्लास हुई है, जैसे हमने नेट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, तो एक उसका एक असाइनमेंट आपको दूंगा मैं। और दूसरा वो आपकी प्राइज मनी वाली जो लिस्ट होगी वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। बाकी ट्रांसफर जो होंगे वो कल होंगे, कल या फिर कल के बाद जो भी होंगे, तो वो आपको तब ट्रांसफर होंगे। ओके। और थैंक यू पीके मल्होत्रा सर, एंड थैंक यू मैम। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और कल आपका सेशन विकी गौतम जी लेंगे, टैली जो कि एसेट एंड लायबिलिटीज पे क्लास होगी आपकी। और जैसा कि जो लेक्चर है हमारा क्लास का वो आपको यूट्यूब पे डल चुका है, उसका लिंक भी आपको मिल चुका है। सो जाइए उसको देखिए अगर कुछ रह गया हो, और प्लीज अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा लोग तक पहुंच सकें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सो